अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ನಾಗರಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರ ಸವಿನೆಸಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರು ಆಳಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲ ಕೋರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನೊರೆದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ದೇಶ. ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಭಾರತದ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 1857ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹಾಗೂ ತಗುಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರುದ್ದಾವನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. Freedom. We were finally free from the British rule. After hundreds of years, we will remember. After hundreds of years, thanks to their sacrifices. Every year on August 15, we celebrate Independence Day to commemorate the first day of India's independence. On August 15, 1947, British rule over India came to an end. We received all the fundamental rights in our country, our homeland after our independence. Everyone should be proud to be an Indian and celebrate our good fortune to have been born in an independent India. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके बाद हिंदुस्तान की यौमान पर जो मदरसों में खानखाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाले, कुरान और हदीस का दर्स देने वाले, हजारों लोगों को जो है दीन के रास्ते पर चलाने वाले, सिखाने वाले, लेकिन जब देखे हालात ऐसे हैं, मुल्क को बचाना है, इस्लाम जो है इनके तसल्लुत से, इन अंग्रेज़ों के नापाक कदम से इस्लाम को बचाना ज़रूरी है। मुल्क बचेगा तो इस्लाम बचेगा, मुल्क बचेगा तो कुरान की तालीम बचेगी, मुल्क बचेगा तो दीन पर चलना आसान होगा। तो माशाअल्लाह जो है जिसकी इंतज़ारी थी हज़रत हाफिज़ अरशद साहब की तशरीफ़ ला गए। अब हज़रत आने के बाद मज़ीद कोई तकरीर और बात की ज़रूरत नहीं है। अल-मुख्तसर जो है हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन ने इसमें हिस्सा लिया, बाकायदा जंग किया, मुकाबला किया, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। कई उलमा शहीद हुए, लेकिन हारे नहीं, पस्त नहीं हुए, मायूस नहीं हुए। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। फिर कई तरीक़ों से इसकी फिक्र करते रहे। दारुल का क़ियाम उसी वक्त हुआ कि भाई अंग्रेज़ ने ऐलान किया कि हम मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त किताबें देंगे, मुफ्त स्कूल चलाएंगे।
उसको तो किसी तरह लालच देना था, उसको किसी तरह हुकूमत। मोहल्ले में अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो मैं मोहल्ले के नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, आज आपके मोहल्ले की मस्जिद में आपको जोड़ा गया है। आप हजरात जानते हैं मुल्क के हालात कैसे हैं, क्या हैं, इसमें हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है, वो सबक देना है। लिहाजा बहुत सारे नौजवान गलियों में हैं, घरों में हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अल्लाह के घर में आ जाए। या आप हजरात की अपने गली मोहल्लों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की फ़िक्र में ऐसे प्रोग्रामों को रखा जाता है। लिहाजा मैं और एक बार आवाज़ लगाता हूँ कि जो मोहल्ले में नौजवान हैं वो अल्लाह के घर के अंदर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह आपके सामने मुल्क की तारीख़ को मुख्तसर तौर पर पेश किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल युरिथुहा मन यशाअु मिन इबादिहि। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। बुज़ुर्गों, दोस्तों और इस मदरसे के अज़ीज़ तलबा और फ़िक्र रखकर तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अगस्त का महीना आता है तो एक फ़िक्र सवार हो जाता है कि किसी भी तरह से जश्न यौम आज़ादी जो इस मुल्क का हर बाशी मनाता है, वो जश्न यौम आज़ादी मनाने से पहले, तिरंगा लहराने से पहले हम अपने नौजवानों को समझा दें कि इस तिरंगे को लहराने से पहले नज़म भी पेश की जाएगी जब तक आप चाय नोश फरमाएं।
सी जानत भरी मीठी वो हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशा हिंदुस्तान दिल पुकारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र हम हिंदी हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें कि पूरे जोश व खरोश के साथ और पूरे होश के साथ सुबह हम इंशाअल्लाह हर घर में जहाँ जहाँ आप रहते हैं बसते हैं पूरी शान व शौकत के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, तिरंगा लहराएं और जहाँ तक मुमकिन हो सके हिंदुस्तान की सही तारीख़ को अपने जलसों में, अपने दुकानों मकानों में जहाँ तक हो सके सुनाने और लोगों को समझाने की आप जो है कोशिश करें। और जहाँ तक मुमकिन हो सके बरादरान वतन को आपके मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम जितने भी रहते हैं सब मिलकर एक सफ़ में खड़े होकर आप जो है इस काम को करने वाले बने। याद रखें कि जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सफ़ में नहीं आए उस वक्त तक अंग्रेज़ भी यहाँ से नहीं गया। उनके बग़ैर सिर्फ जो है अकेले अकेले तन्हा तन्हा और जो है हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाना यह जो है ठीक नहीं रहेगा। लिहाजा हमारी अपील यही है कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो पूरे जोश व खरोश के साथ बरादरान वतन को लेकर जितने आपके अड़ोस पड़ोस में हैं पूरी जो है अजीम शान तरीके से आज़ादी का जश्न मनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारी खुशनसीब है कि मौलाना अरशद साहब हमारे मस्जिद खैरुन्निसा में बहुत कीमती बातें, क्योंकि हर जुम्मा में खुतबे में सुनती ये बातें जो हुई हमारे आज के सियासतदानों को मालूम नहीं। हमारे बुजुर्ग आज़ादी के वास्ते कहते कुर्बान हुए, उलमाए कराम कहती कुर्बानी के बाद हमने आज़ादी मिली। हमारे आज के सियासतदान, आज के लीडर, आज के नौजवान क्या समझिए कौन से की दुकान में मिला था, हमारे बड़े जाको ले लिया। बहुत जने के उलमाए कराम और हमारे बुजुर्ग पुराने सियासतदाना बहुत से कुर्बानी जता के जान का माल का सब सौदा करे बाद हमने आज़ादी 70-5 साल पहले मिलको है। हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है जन चीजा में छोड़ लेगा की सस्ता जो मिलता है वो हमारा, महंगा जो मिलता सब गैरां का, गैरां करना उनका फर्ज हो, हमारा नहीं कर को बोल को ये सबसे ज्यादा फर्ज बनता, क्योंकि ये हुकूमत सरजमीन के ऊपर 800 साल हुकूमत करे सो कौम, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों को भगाने के वास्ते ज्यादा कुर्बानी दिए सो कौम आज क्या कर कर को बोले तो वो आजादी मनाना दूसरी चीजा करना सब गैरां का, स्कूल वाले का, लीडर का काम कर को समझ के हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि आजादी की खुशी मनाए। जैसा कि हमारे बुजुर्ग याद करे, उनकी मगफिरत के वास्ते दुआ करे। जत्ते उलमाए कराम शहीद हो गई, मैं मौलाना से आज मंजे जत्ते बातें मालूम नहीं थे, मौलाना के मुंह से सुनने का मौका मिले। हमना सब नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज़ादी हर गली में हर घर में मनाए। जिसे मालूम नहीं है मैं मौलाना से और एक बार गुजारिश करता हूँ कि और वक्त देकर हमारे पूरे मोहल्ले के नौजवानों को जमा कर उनको मालूम कराना जरूरी है ये, क्योंकि आज के नौजवान कहाँ कर को बोले खाली मोबाइल पकड़ ले को, स्कूटर उड़ा ले को, ऐसा कर ले क्या कर रही कर को बोले तो पूरी कौम का नाम बदनाम कर रही। ये आज़ादी का मौका जो है कौन की ये कौम के वास्ते नहीं, हिंदुस्तान का हर नागरिक करने का फर्ज बनता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारे बुजुर्गों की, क्योंकि हमें शेर मैसूर में रहती, मैसूर का नाम जो है शेर मैसूर, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आजादी के वास्ते शहीद हुए थे। सबसे करीब रहने वाले मैसूर वाले का ज्यादा फर्ज बनता है कि आजादी का जो खुशी का मौका है गैरों को भी साथ लेकर हमारी अच्छाई दिखाते हुए, जैसे हमारे बुजुर्ग आजादी के वास्ते उनका भी साथ लेकर आजादी के वास्ते लड़े, हमारे आज के नौजवानों का भी फर्ज बनता है कि हमें सब एक हो, एक हिंदुस्तान जरे ही सो। आज जो नफरत डाल रही उन अंग्रेजान जाते आते उनकी नस्ल जो छोड़ को जा कोई उन्हों मुसलमानों के खिलाफ कर रही। गैराम भी हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुक आते, उनकी नस्ल लड़ रहे सो। जब जड़कुश निकाल को भिड़का ले, छोटी नस्ल को भिड़काना नहीं, हमारे में बदलाव लाना, कहा कि हमारे गलतियां की सजा आज हम ना मिल रहे कर को बोलते हुए सबको आज आज़ादी की और एक बात मुबारकबाद देते हैं। मैं मस्जिद खैरुन्निसा की पूरी कमेटी के जानिब से, हमारे मोहल्ले की जानिब से मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मोहल्ले में मौलाना जाको, हर मस्जिद में जाको आज हमारे नौजवानों में एक जागृति लाए कर को बोले तो कहा कि एक जगह हमारे नौजवान आइंदा आने वाले दिनों में कौन की सवाल करे तो तुम्हें हिंदुस्तानी आएंगा तो ऐसे बुजुर्ग हमारे शहीद हुए बाद
हमने आज़ादी मिली, हक हमारा भी है, घर को हमारा नौजवान उसका जवाब देने के वास्ते मौलाना को 1-2 घंटे 3 घंटे वक्त हमारे नौजवान दिए। तो बहुत से चीज़ें जो 200 साल 250 साल से गुजर को ही वो मौलाना की बात से उनको समझ में आ गया, तो उनकी जिम्मेदारी उनको समझ में आती है। इस मौके पर मैं मौलाना का और पूरे उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करूँ। अस्सलाम वालेकुम।